नाइस. So let's understand कि डिजिटल मार्केटिंग में एज अ मार्केटर हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होगी. So SEO, AdWords, social media, these are all platforms to drive traffic, right? But then before even we look at driving traffic to our website, the first step as a marketer that we'll have to get into is understanding the business, the domain, right? Without even understanding that, we won't be able to sell the product, right? So I think in today's date, a lot of digital marketers fail, and the reason that they would fail is a lot of them do not put in efforts to understand the business, do not put in efforts to understand the psyche of the customer, and पूरा साइकोलॉजी वहाँ पे वो उतना एफर्ट नहीं डालते. आधे एजेंसीज तो अपने ऑफिस से ही काम करते हैं, एंड हम लोग जब डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो स्टूडेंट्स भी इस माइंडसेट में रहते हैं, सर ये डेस्क जॉब है ना. राइट. सो डेस्क जॉब है विच इज़ परफेक्ट, आप करोगे लैपटॉप से, आप कहीं से भी कर सकते हो. बट देन टिल द टाइम यू डोंट गो एंड अंडरस्टैंड द कस्टमर, राइट. सो I also do some consulting assignments occasionally as and when I have time. So real estate mein I have got a lot of students. Almost like every real estate we would have some Lips India guy, and in certain cases there would be guys who are heading there, and in certain cases like you have your own. So we have quite a few. So people who've done these courses. So then one of our students यहाँ पे Runal Developers करके है, तो the owner's daughter was also. But then I was just trying to help. So I said, if I have to help you in terms of marketing, the first thing is I'll have to go meet your team. उनसे पूछना पड़ेगा किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या पूछते हैं, क्या मिलते हैं. जब तक मैं 100 कस्टमर से नहीं मिलूँगा मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा. मुझे जब तक if I don't understand कि किस तरह के लोग आ रहे हैं, I'll not be able to target, right? So as a digital marketer, आपका first thing should be to go and understand the business. When I say business में कस्टमर को समझना एक पार्ट है, बिजनेस का पूरा प्रोसेस भी समझना पड़ेगा आपको. सो इट्स कंसल्टिंग दिस जिम का चेन सिंस आई एम हियर. सो इट्स अ लार्ज चेन दैट आई वाज कंसल्टिंग. सो आई सेड इफ आई अंडरस्टैंड मार्केटिंग ऑफ अ जिम, सो कस्टमर्स विल कम फॉर इनिशियल 10-15 डेज ड्रॉप होते हैं, शुरू में ही पैसा देते हैं, राइट. तो पहले उनको जिम का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ेदार लगना चाहिए, तो वो लालच में आने चाहिए. लालच मैंने पहले लालच क्रिएट करना है, फिर उनको लाने के लिए कुछ गाजर होना चाहिए, राइट. और जब आ जाए तो उनको कुछ टाइम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. मतलब एक दिन में नहीं, बट हाँ विदिन 5 डेज़ के अंदर में उनसे पैसा ले लेना चाहिए, बिकॉज उसके 15 दिन बाद उसमें से 90% लोग नहीं आएंगे, राइट. सो देन इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ पे पूरा कंटेंट चेंज करवा दिया, सोशल मीडिया का, वेबसाइट का. वी सेड विल नॉट यूज़ इमेजेस, विल यूज़ ओनली वीडियोज़, बिकॉज if you're not able to showcase what you have here, so people will not feel, and they will not feel, so they're not excited. So you'll have to create their excitement, right? So as a marketer, the first thing is you'll have to start by understanding the business. When I say business, entire cycle. So once we're done here with the business, so now we start looking at driving traffic. So if I have to drive traffic, what is the place that I bring all the traffic to? If it was offline, so then I need to have a store. I need to have a shop, right? So my online shop is my website, right? So now again, website is created by website developers. You have web designers who make the look and feel, make the website interesting, right? So then you have website designers, developers, and then invariably you have content writers who write the content on the website, right? So then businesses would say, okay, तुम website बनाओ, content भी तुम ही लिख दो, right? अब एक question, let's say if we go to a lifestyle store, right? उसका शॉपिंग काउंटर कहाँ पे रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रहेगा, उससे उसके सेल्स पे फ़र्क पड़ता रहेगा क्या? पड़ेगा. वो शॉपिंग काउंटर कहाँ पे रहेगा, उससे फ़र्क पड़ेगा. सो वो इंटीरियर डिज़ाइनर ने इंटीरियर तो डिज़ाइन कर दिया, बट वेयर डू यू प्लेस ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स? हु वुड डिसाइड दिस? विल इट बी द इंटीरियर डिज़ाइनर हु डिसाइड्स इट? नो. हु विल डू दैट? क्या लगता है? देयर कुड बी सम मार्केटिंग टीम और सम टीम विच लुक्स एट द रेवेन्यू साइड ऑल्सो, because that has a role to play in terms of the sales, right?
So similarly, when we say we are going to create our website, it could be a website designer, developer who understands the technicality, but he does not understand the marketing part of it. And that is where, as a digital marketer, you will have to get into. So as a digital marketer, one of the most important things that you'll have to get into is in the content of the website. So when I say content, you could have the best of the language written there, or you could have a very simple language with a small bulleted points. Both of them convey the same message, and maybe both of them could have the same kind of impact or little marginal difference, but then something which has to be there. तो वो कंटेंट कौन डिसाइड करेगा? आप कहाँ पे क्या, और वो डिज़ाइनर नहीं कर पाएगा, वो कंटेंट राइटर भी नहीं सोच पाएगा. एंड दिस विल बी 40% ऑफ द जॉब ऑफ अ डिजिटल मार्केटर इन द डेज टू कम, बिकॉज इसके लिए आई हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट कंटेंट बिकॉज ही इज स्टिल स्टडिंग, राइट? फॉर हिम आई हैव टू क्रिएट अ डिफरेंट कंटेंट बिकॉज ही इज फिनिश्ड, right? You have a business, so for you I will have to create a different content because each one of you would have a different, and he is working at a senior level, so for him he will need a different content. So if I want to acquire each one of you in the same class, right, I will need that different hook point for each one of you, and इतना मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, right? So we will have to create multiple number of pages, and इसको जो स्टोरी चाहिए वो इसको देखना चाहिए, उसको जो स्टोरी चाहिए वो उसको देखना चाहिए, अलग अलग. तो यहाँ से स्टार्ट होगा. दिस विल बी 40% ऑफ द जॉब. सो फॉर अस एंड निशांत, वी कीप ऑन क्रिएटिंग एवरी डे, वी क्रिएट पेजेस ओनली. सिर्फ कंटेंट क्या होगा, बिकॉज गूगल एडवर्ड्स और ये वो इतना स्ट्रक्चर्ड है कि उसमें कुछ नहीं चेंज करेंगे. इट्स बीन 6 years, वी डोंट डू एनीथिंग देयर. सिर्फ पैसा डालते हैं उसमें, सिर्फ स्टोरी चेंज होगी. बिकॉज 2017 की सेल स्टोरी विल बी डिफरेंट, 18 इज डिफरेंट, 19 इज डिफरेंट, एंड 20 विल बी डिफरेंट, राइट? एंड एवरी मंथ कुड बी डिफरेंट. जनवरी, फरवरी, होली, दिवाली, न्यू ईयर, राइट? सो दैट्स वेयर. सो एज अ मार्केटर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिस इज़ वेयर 40% ऑफ द सक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग लाइज, राइट? सो वंस वी आर डन विद द वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट, लुक एंड फील, वी लीव इट ऑन द अदर गाइज, राइट? So then I'm saying कि content is also going to be our responsibility, and then you can give it to a content writer. You can write it better, but then you have to decide वहाँ पे क्या होना चाहिए. So on my website I decide वहाँ पे फीस ऐड करना है नहीं करना है. एक छोटा सा बटन है ना, अगर वहाँ से फीस हटाया तो क्या होगा? On our website if I remove the फीस का बटन, वहाँ पे फीस नहीं दिखाता हूँ, I'll have more leads. ज़्यादा लोग आएंगे, फिर मेरी टीम को कॉलिंग भी ज़्यादा लोगों को करना पड़ेगा, और उनमें से बहुत सारे लोग फिर आगे चल के बोलेंगे नहीं यार ये तो मेरा बजट नहीं है. सही है? सो देन आई डिसाइड वेदर वो फीस डाल करके डू आई हैव टू फिल्टर पीपल और नॉट, राइट? सो दैट व्हेन पीपल कम टू अस दे नो व्हाट इट इज़, राइट? तो ये भी मैं डिसाइड कर रहा हूँ. सो दैट इज़ वेयर आई एम सेइंग कंटेंट. सो वंस वी आर डन विद दी वेबसाइट एंड दी कंटेंट, सो देन वी से ओके, अभी हम लोग वी आर मूविंग फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग विच see in the last couple of years organizations have been trying to learn and implement digital marketing in terms of implementing. सीख रहे थे कैसे करना है, अभी सीख चुके, अच्छे जगह पे सब सीख चुके, राइट? अब वो बोले नेक्स्ट लेवल पे इस डिजिटल मार्केटिंग इफेक्टिव कैसे बनाना है, राइट? इफेक्टिव बनाना मतलब यू नीड टू लुक एट द डेटा दैट यू हैव, एंड उस डेटा के बेसिस पे हम लोग मार्केटिंग करना चाहेंगे. सो देन नाउ वी आर मूविंग टू अ डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग. सो व्हेन आई से डेटा ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग, विच मीन्स मेरे पास पहले डेटा तो होना चाहिए, सही है ना? अगर डेटा नहीं है, अगर आज मैं एक रेस्टोरेंट के पास जाता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो तुम्हारे बिजनेस को नेक्स्ट 3 months में आई विल हेल्प यू ग्रो, तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट आई आस्क इज डेटा दो मुझे, राइट? एंड इफ द बिजनेस डज नॉट हैव डेटा, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? सो इन टर्म्स ऑफ देन व्हेन वी आर रेडी विद द वेबसाइट एंड कंटेंट, देन वी कलेक्ट डेटा चाहिए मेरे को, तो उसको उसी से हम लोग सेट करते हैं. सो देन there are tools like Google Tag Manager which will of course learn. इसके थ्रू हम लोग वेबसाइट पे बहुत सारे डेटा कलेक्शन के पॉइंट्स क्रिएट करते हैं. सो डेटा कलेक्शन के पॉइंट्स कैसे भी कुछ भी हो सकते हैं. जितने लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया उनका एक अलग, नीड द नेम, बट एटलीस्ट टेल मी हाउ मेनी पीपल क्लिक्ड ऑन द मेंटर बटन, how many people clicked to view आनंद कुमार का प्रोफाइल, how many people viewed 50% of this video. जिन्होंने 50% तक देखा, चलो उनको दूसरा वीडियो तो दिखा सकते हैं. जिन्होंने ये 4 बटन क्लिक किया था उनको, जिन्होंने पेज का 80% स्क्रॉल किया है उनको अलग कंटेंट दिखाना है, जिन्होंने सिर्फ 30% पेज स्क्रॉल किया था उनको अलग. और मे बी द डेटा सेज कि ओके 90% पीपल एग्जिट माई वेबसाइट विद इन 10 विद इन दी
10 pixel or let's say the first 10% of the height of the page itself, तो उस 10% के अंदर मैं एक पॉपअप दिखाना चाहता हूँ, बट मुझे मालूम तो होना चाहिए कि इतने सारे लोग 10% ऑफ दी साइज़ के नीचे ही एग्जिट कर लेते हैं, राइट। तो ये सब डेटा कलेक्शन के काफ़ी सारे टूल्स हैं, जिसमें से एक टैग मैनेजर हम लोग सेट करते हैं उस पर, एंड इसके थ्रू डेटा हम लोग गूगल एनालिटिक्स और ये सब में भी डालते हैं। तो ये सब हम लोग शुरू में ही सेट कर देते हैं। सो व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज़ वी ट्राइंग टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दी ट्रैफिक आने से पहले, बिफोर वी ओपन आवर डोर्स फॉर पीपल टू वॉक इन, वी शुड बी रेडी विथ ऑल ऑफ इट, राइट। तो देन वी हैव डेटा कलेक्शन भी कलेक्ट कर दिया वहाँ पे, एंड देन गूगल एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स अभी सिर्फ सेट कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए, राइट। नाउ वंस वी डन विद दिस, देन वी सेइंग ओके, before we open the doors for the customers to walk in, let me also find out a reason that why people who will come should buy it from me, right। कि अगर 100 लोग मेरे पास आएंगे, उसमें से 4 तो खरीद के जाएंगे, तो ये तो कोई सेल्स नहीं हुआ, राइट। अगर 100 आएंगे, उसमें से 1 तो खरीद के जा रहा होगा, राइट। बट हाउ कैन आई इंक्रीज दिस 1 2 3 4 5% ऐसा, तो ऐसा वहाँ पे कस्टमर के लिए क्या क्या कर सकता हूँ जिससे कि ज़्यादा कस्टमर्स आकर के खरीदे, राइट। So then there's a term called CRO, Conversion Rate Optimization, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे वेबसाइट पे आ रहे हैं, इनमें से कितने ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो डिस्काउंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दी कन्वर्जन रेट, कैशबैक इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम थिंग, राइट। और बहुत सारे वेबसाइट्स पे हम लोग जाते हैं, तो वहाँ पे देखो, आप वेबसाइट पे जाते हो, व्हेन यू आर अबाउट टू एग्जिट, एक पॉपअप आता है, इट सेज वेट अ मिनट, लास्ट मिनट ऑफर फॉर यू, सही है। एक कस्टमर आया, 100 रुपीज़ में ख़रीद रहा है, सही है। जो नहीं खरीद रहा है, चला गया, तो उसको 5 रुपया ऑफ कर देते हैं, राइट। और जो 5 रुपये ऑफ लेकर के भी नहीं खरीदा, नेक्स्ट टाइम इफ़ यू विजिट, तो बोलें सर चलो अभी आप सेकेंड टाइम आए हो, तो आई विल गिव यू 10 रुपीज़ ऑफ, बट यू हैव टू बाई राइट नाउ। ऐसा कुछ हम लोग सेट करना चाहेंगे, तो इसके लिए कुछ टूल्स हम लोग समझते हैं। सो व्हेन वी लर्न, वील अंडरस्टैंड सम टूल्स हाउ टू डू दिस, राइट, बट दैट्स ए टेक्निक दैट वील हैव टू इम्प्लीमेंट। तो आज के डेट में ये डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया, उसके हिसाब से फिर और, तो ये CRO वील अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, बट यस दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बिकॉज आज के डेट में कस्टमर सिंपल वॉक इन कर रहा है तो ऐसे नहीं खरीद रहा है, देयर हैज़ टू बी सम हुक पॉइंट, राइट, एंड दैट हुक पॉइंट कुड बी एनीथिंग, बट द कस्टमर एक्सपेक्ट्स कुछ तो होना चाहिए मेरे लिए, राइट। तो इसका इसी सेम CRO का एक एग्जांपल देखोगे तो अभी कौन से बैंक बाज़ार, लोन्स वाला कौन सा है, पॉलिसी बाज़ार तो एक है, और अक्षय कुमार पॉलिसी बाज़ार, बैंक बाज़ार है शायद। जो बैंक बाज़ार के ऐड में आता है ना, फ्री सिबिल स्कोर चेक करते, बैंक बाज़ार के ऐड पे आता था, किस में आता था, फ्री सिबिल स्कोर चेक करो, आई थिंक किसी एक के टेलीविजन ऐड पे। सो वहाँ पे क्या है, वो सिबिल्स को चेक करने का कॉस्ट इज़ 500 रुपीज़ एज एन इंडिविजुअल, इफ़ यू गो एंड चेक, तो दैट इज़ 500 रुपीज़, ठीक है। बट वहाँ पे कस्टमर को फ्री में मिल रहा है, तो क्या किया उसने, अपने जेब से 500 रुपया दे दिया, नहीं, 1000 सिबिल स्कोर या 10,000 एक साथ लेगा, बल्क डील करेगा, तो कितने में मिलेगा उसको, दिल गेट टू बाई इट फॉर 200-300 रुपीज़। जो 200 रुपीज़ का एक गाजर डाला, उसके चक्कर में कस्टमर अपना पूरा डेटा देगा, सही है ना, उसका नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसका EMI, अर्निंग पोटेंशियल, सब चीज़ मिल गया। अभी इसके हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी व्हेन यू सेल योर प्रोडक्ट रियल एस्टेट में, डू यू कस्टमाइज़ इट, अलग अलग लोगों के लिए ऑफर्स कस्टमाइज़ करते हैं ना। तो अगर ये डेटा आपको पहले से मालूम है तो आपको मदद होगा। सो कैन रियल एस्टेट नॉट ट्राई एडिंग दिस एज अ बेट। अभी 100 लोग वेबसाइट पे आ रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2 वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म फिल करके जा रहे हैं, उनको बोला सिविल स्कोर फ्री में चेक करो, कितना कॉस्ट गया, 200 रुपये। अगर इस गाजर के चक्कर में 10 कस्टमर आ गए और 10 कस्टमर का डिटेल आ गया, तुम्हें भी कस्टमाइज़ कर सकते हो उसको एक ऑफ़र। अच्छा, इस बंदे का EMI का थोड़ा इशू होगा, इसको थोड़ा सा ऑफ़र दे क्या, या लेट्स से कुछ रिलैक्सेशन दे, सम ऑफ़र, राइट। सो देन एट दैट 200 रुपीज़ का गाजर पे मेरे पास अभी पहले 2 लोगों का डेटा आ रहा था, अभी 10 का आएगा। सो देन आई हैव इंक्रीज माई कन्वर्जन रेट फ्रॉम 2% to 10%। तो ऐसे बहुत सारे हैं। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड, वील अंडरस्टैंड सम मोर एज ए
But yes, so this is 40% of the digital marketer's role, right? And then now we start with, chalo gate kholte hain and let invite people.